Good morning, student. Welcome you all. So today I'm going to teach you a grammar topic that is or which is titled as reported speech. Let's start. So today in reported speech we will start reported speech, the rules of pronoun. So as you all know, in previous video we have done the rules of tenses. All right, so in this particular video we will see some pronoun related rules. Okay, so let's start. The first rule is the change in the personal pronoun in the reported speech. So you all know what is pronoun. those pronoun वो words होते हैं जो किसकी जगह पे यूज होते हैं, नाउन की प्लेस पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. सो बेसिकली यू कैन से प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन or instead of a noun. So there are so many pronouns are there, like and that there are three persons of pronoun: first person, second person and third person, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर और रीडर होता है. सपोज I am the speaker or the writer. So I am the first person. So first person is I, me, my, we, okay, myself, mine. So these words are the first person. And the second person means those person who are listener or readers. Just like you are the listener, so you are the second person. So in second person we use you, yourself. All right, and the third person जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे he, she, it, they और सब नेम, वो क्या हो गए हमारे थर्ड पर्सन. सो ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउंस हैं. ऑल राइट, सो ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं हम इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. ऑल राइट, सो let's start the first point. Pronoun of the first person in the reported speech of the direct form are changed in the direct turns to the person of the reporting verb. So as you all know, the direct speech has divided into two parts. First part is reporting verb, and the second part is reported speech. There are two parts: reporting verb and reporting speech. If our reporting speech means this part, अगर हम बात कर रहे हैं, if our this part means reporting speech part, subject the reporting speech part subject is in first person, then is changed according to the subject of the reporting verb. All right, means जो reported speech का सब्जेक्ट इफ फर्स्ट पर्सन में हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ऑल राइट, लेट्स see the example. He said I am not guilty. Direct sentence है ये, right? So he said, so he is subject and said is verb. All right, there is no object. See this two parts, there are two parts. The he said is the first part, it means this is reporting part, and the second part is this, it means this is a reported speech part. All right, so as I already told you so many times that the first part, that is the reporting clause part, if there is any object then we have to change in the verb. If there is no object, means if it is not contain any object, then there is no need to change in the verb. So he said, so he is subject and said is verb, there is no object, so we just put as it is, he said becomes he said only. All right, तो हमने इसको he said का he said ही रहने दिया. Then he said means the first part and the second part is the inverted commas part, I am not guilty. So we have to join these two parts. So connection के लिए और link करने के लिए we use one conjunction, that is that. हम हमेशा यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, that का यूज कर रहे हैं. So we put that here. All right, so now I is pronoun. I is first person. What I told you, I is first person. So if the reported speech subject is in first person, that first person change according to the subject of the reporting
वर्ब। सो इधर सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ही, सो आई किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा। ऑल राइट, सो ही आई जो है वो भी सिंगुलर है, ही इज ऑल्सो सिंगुलर, तो आई का जब हम ही में चेंज करेंगे तो वो भी डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा ये, ही। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने देखा कि वो क्या हो गया, ही। सो ही सेड दैट ही, अब हमने ऑलरेडी टेंस रिलेटेड रूल कर देते हैं, जो प्रेजेंट में होता है हम उसको पास्ट में करते हैं, तो एम प्रेजेंट में है, अब एम प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है, तो अब ही है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें पास्ट की कुछ फॉर्म लगानी होगी, पास्ट की वर्ब लगानी होगी, तो पास्ट की दो वर्ब्स है, वॉज एंड वर्ब, राइट। सो वर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, ही वॉज नॉट गिल्टी, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। सो सेकेंड पॉइंट इज, second is pronoun of the second person in the reported speech of direct form are changed in the indirect form of the person of the object of the reporting verb. So first means in reported sentence first person को हम क्या change करेंगे, according to the subject of the reporting verb. If reported speech contains second person, okay, as a subject, okay, so the second person change according to the object of the reporting verb. Clear, reporting verb के object के according change होगा। See, he said to me, this is first part, he said to me, and you are right the second part. So first part is reporting part and the second part is reported part. So you is the second person, you first person नहीं है, so ये second person है। So what I told you, second person always change according to the, just a second, second person always change according to the object of the reporting verb. So here you is the what, you is subject and the second person, और ये किसके चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हियर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सो यू हमको किस में चेंज करना है, मी में चेंज करना है। ऑल राइट, सो फर्स्ट ही सेड टू मी, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर एंड ऑब्जेक्ट इज देयर। सो ऑब्जेक्ट होगा तो सेड बिकम्स टोल्ड, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ही टोल्ड मी। सी सेड के बाद टू हम यूज करते हैं, बट वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट कैरी टू with told. All right, so he told me, then we use conjunction that is that हमने use किया। okay, so you को हम change करेंगे me में, so me becomes I। okay, so I R convert हो जाएगा past में, so I के साथ हम past क्या use करेंगे, was, so R becomes was here and right का right, so he told me that I was right। understand? so listen, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब, ओके पहले आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। सी इफ योर रिपोर्टेड स्पीच contain any third person as a subject, so you don't need to change anything, मीन्स देयर इज नो नीड टू चेंज, वहां पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं। देखो क्या बताया था मैंने आपको, दो पार्ट्स है हमारे। फर्स्ट इज, आई हैव टू चेंज द कलर, ओके, सो फर्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, मैंने सेकेंड पार्ट को फर्स्ट में लिख दिया, एंड द नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। So reported speech is in first person, so it's changed according to the subject of the reporting verb. All right, and if reported speech is in second person, then is changed according to the object of the reporting verb. If reported speech is in third person, means subject is third person, then is change according to the, means there is no change, मतलब वहां पे फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में है तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? ओके,
सो अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होंगे, तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल फर्स्ट. I said to him, so I is subject, said is verb and him is object. So यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का. देन सेकेंड सेंटेंस इज शी इज वेरी क्लेवर. ऑल राइट, सो फर्स्ट पहले वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. सो आई टोल्ड हिम दैट she is third person. So what I told you, whenever we see third person in reported speech part as a subject, then we don't need to change anything. तो she becomes she only, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. बट यहाँ पे हम प्रोनाउन में चेंज नहीं करेंगे, बट टेंस तो चेंज होंगे हमारे. सो इज बिकम वॉज, इज इन प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस पास्ट, प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम वॉज करेंगे, एंड देन वेरी क्लेवर एज इट इज पुट करेंगे वेरी क्लेवर. क्लियर? सो ये तो थे हमारे सम प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. लेट्स डू सम एक्सरसाइज. Okay, so first sentence is he said I like the book. He said I like the book. So he said become he said because there is no object. Then we put conjunction or some linking words, that is the. So the is conjunction here. All right, so हमने the को put करा. Then I is first person. So first person change according to the subject. So subject क्या है यहाँ पे? He subject is here. So I का he becomes he. He like present में है तो liked हमने past में कर दिया. Then the book as it is. Okay, so he said that he liked the book. Next is he said to me. So there is an object. He said to me, subject, verb and object. So do you like the book? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया. वी विल नॉट स्टार्टेड इट येट, हमने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है. सो फिर भी हम इसको देख लेते हैं. सो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक द बुक. सो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसको हमने अभी तक किया नहीं है. नेक्स्ट इज ही सेड ही लाइक्स द बुक. सो ही सेड दैट ही लाइक द बुक. ऑल राइट, सो if there is one exception, if however the sense of the indirect speech is such that the act of reporting is happening at the same time and the same place, there is no change of the above in the above words. See, अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो सेम टाइम और सेम प्लेस के बारे में बात करें तो चेंजेस नहीं होंगे. सी द एग्जाम्पल कि कैसे चेंजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. रुचि सेड दिस इज माई हाउस. अब रुचि क्या कह रही है? ये मेरा घर है, राइट? सो रुचि सेड दैट दिस वॉज हर हाउस. सो दिस बिकम दिस. अब दिस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दिस हमारा एक डिटर्मिनर है. सो जब सेम टाइम और सेम चीज की बात है तो दिस बिकम दिस हो जाएगा. इसको हमने वॉज में चेंज कर दिया. माई हमारा प्रोनाउन है. सो माई इज द फर्स्ट पर्सन. रुचि से सेट करेंगे तो रुचि एक गर्ल है तो गर्ल की जगह हमने यहाँ पे हर पुट किया. देन हाउस बिकम हाउस. ऑल राइट, सो इस तरीके सेंटेंस आए तो डोंट बी कंफ्यूज. इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है. ऑल राइट, सो देयर आर सम एडवर्बल चेंजेस ऑल्सो. ठीक है, कुछ एडवर्ब्स रिलेटेड चेंजेस भी हैं तो वो भी हम देख लेते हैं. वो क्या है? देखो, चेंज इन द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम और ऑक्सिलरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होते हैं. सो दिस, अगर किसी भी सेंटेंस में दिस हो तो दिस बिकम डैट, देयर बिकम, सॉरी दीज होगा, दीज बिकम दोज. देयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये देयर नहीं है, ये दीज है. ओके, तो दीज दोज. नाउ बिकम्स देन, हेयर इज देयर, टुडे इज डैट डे. इसे थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा. टुडे बिकम्स डैट डे, tomorrow the next day, और you can say the following day also. next day भी आप लिख सकते हैं tomorrow को, और the following day भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है बट इन PDF आपको मेंशन किया गया तो आप उसमें देख सकते हैं. yesterday change into the previous day और the day before. yesterday को आप day before भी लिख सकते हो और the previous day भी लिख सकते हो. and the last night the previous night. can, अब see, there are models also. So models change according to their past form because so in this tense, in this topic we have to change models in their past form. So can की past form क्या है? could. तो वो could में change हो जाएगा. may, might, shall, should, will, would and ago
बिफोर में, बट शुड ऑलरेडी पास्ट में, तो शुड को हम चेंज नहीं करेंगे, शुड एज इट इज होगा, शुड बिकम शुड ओनली, वुड बिकम वुड ओनली, ऑट टू बिकम ऑट टू ओनली. ऑल राइट, सो वन मोर टाइम हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है. ओके, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर. देखो इसमें और भी चीजें दे रखी है, मेंशन है, डे बिफोर भी कर सकते हो. डे बिफोर यस्टरडे मीन्स 2 days बिफोर. डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले वाला दिन, यानी 2 दिन पहले, तो क्या लिखेंगे, 2 days बिफोर. याद रखना आप. टुमारो, द नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, तो 2 days लेटर क्या हो जाएगा, ये 2 days लेटर. डे आफ्टर टुमारो क्या बन जाएगा, 2 days लेटर. नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, so next day, the following day. Okay, next month, the following month. Ago, before. All right, this time, that time, तो this that हो जाएगा, तो this time, that time, this that and here is there. I hope ये सबको अच्छे से टेबल समझ में आएगी. If you want to note this, you can note in your notebooks. Clear? आप इसका यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. तो मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इफ़ यू नोट इट देन यू कैन, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर लीजिएगा. ऑल राइट, सो the rules of changes, pronouns, tenses, etc. are follow. So you all know that we have already done the tense and the pronouns. So there are some questions. So इसको solve कर लीजिएगा, कर लेते हैं, कर लीजिएगा नहीं, हम करते हैं, खुद ही करते हैं. Ramu said, I saw a lion in the forest. So Ramu said, so Ramu said becomes Ramu said. That हम पुट करेंगे. I फर्स्ट पर्सन है, रामू है, तो हमने ही पुट किया. देन सॉ इज द सेकेंड, सॉरी, पास्ट के बारे में है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. सी, सॉ एंड सीन. सी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉ इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सीन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल राइट, सो सॉ क्या है हमारा, पास्ट, सिंपल पास्ट किया, तो सिंपल पास्ट हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, सॉ की सीन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो रामू सेड दैट he had seen a lion in the forest. The rest of the sentence we put as it is. The next is Satish said to me, I am very happy here. So Satish said to me. Satish is subject, said is verb and me is object here. So अगर object है तो verb में change होगा, तो हम क्या करेंगे, Satish told me. Then put that as a linking word, means linking word that है, तो that put करेंगे. I is the first person, so first person change according to the object, sorry, according to the subject. So सतीश की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, he. am present में है, was करेंगे तो he was. very का very कर देंगे, happy का happy कर देंगे. here का मैंने क्या बोला था, adverbial changes में here change to there, तो here का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, there कर दिया. क्लियर? तो आपको ये सब समझ में आया कि कैसे हमने चेंजेस करे, कैसे किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और देख लेते हैं. ही सेड आई कैन डू दिस वर्क. ही सेड, तो ही सेड बिकम्स ही सेड, देन पुट दैट. आई ही में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का ही कर देंगे. कैन, मॉडल कैन है, तो पास्ट क्या हो गया कैन का, कुड, तो हमने यहाँ पे कुड लिखा. डू में चेंज हो गया. दिस किस में लगता है, डैट में, और वर्क का वर्क हो गया. ठीक है, सो ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. रेनू सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स. अब रेनू क्या कहती है, क्या कर रही थी, वो कपड़े धो रही थी. ठीक है, तो रेनू सेड टू मी सब ऑब्जेक्ट है, तो रेनू टोल्ड मी दैट आई रेनू गर्ल है, तो क्या हो जाएगा इसका, शी was washing, तो क्या आ रही है, was washing. was verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, तो क्या है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एड ing. ओके, सो रेनू टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ. सो हैड बीन हमने यहाँ पे पुट कर दिया. लास्ट सेंटेंस देखो, डायरेक्ट. शी सेड आई एम नॉट वेल, तो शी सेड दैट आई, शी में चेंज हो जाएगा, शी, एम का वॉज, नॉट वेल एज इट इज हम लिख देंगे नॉट वेल. ऑल राइट, सो
I hope you all understand this tense मीन्स द प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स. सो हमने इसमें कुछ टेंस रिलेटेड रूल्स भी कंप्लीट कर लें. आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये सब. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.